Good morning. Today we are going to start the next chapter, that is the third chapter of your textbook Honeydew, which is the title Glimpses of Past, taken from our Freedom Movement by S.D. Sawant. So here the title of this story narrating glimpses. So what is a glimpse? Glimpse means एक छोटी सी झलक. If you didn't want to get the whole knowledge by line to line and just want to introduce with only the glimpse of the whole century, that what happened in that time, what has done by the peoples in that time, how the Britishers took over the country, how the Britishers took over the business and kingdom, how many types of the problem he faced, lots of troubles, and everything was mentioned in this story as a glimpses. So this is a way in the title, the glimpse of past, to pay the contribution, to pay the tribute and the gratitude to the martyrs from the beginning of this chapter. So here we can say that before you read, I want to state something about this title and this chapter as an introduction. The glimpse of past is in the form of the conversation dealing with the Indians' struggle for independence, and it is written by the S.D. Sawant. So, the chapter describes the event and the circumstances that took place in India during the year 1757 to 1857. It starts with the time when the East India Company was very strong in India, and all this and more noteworthy episodes of the Indian history and Indians' struggle for the freedom are highlighted in the Glimpses of Past chapter. So what is the glimpses of past? What is the meaning of glimpses of the past? Actually, the story Glimpses of Past depicts the history of the Indians' war of independence against the British rule with the help of picture and the strips of the text in. So it provides a glimpse, ये एक झलक प्रोवाइड करती है दैट हाउ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड, किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पूरे देश में फैली हुई थी एंड एक्सपेंडेड इट्स पावर, और उसने अपना जो पावर था वो किस तरीके से एक्सपेंड किया था, फैलाया था, कहाँ पर, इन इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेड इंडियंस, और शोषण किया था उसने भारतीयों का. हाउ दे रॉब्ड लैंडलॉर्ड्स, किस तरीके से उसने ज़मींदारों की ज़मीन को छीन लिया था. रॉब्ड मतलब चोरी करना, डकैती करना. दैट लेड टू फेमिन्स एंड द पुश्ड द पैट्रियट टू लॉन्च द वाइड स्प्रेड मैसेजेस. एक्चुअली वो ये चाहते थे कि हर एक पर अपनी हुकूमत को जारी करना, अपनी हुकूमत चलाना, और हर देशभक्त को इतना मजबूर कर देना कि वो घुटना टेक दे उनके सामने. तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी लेकर उन्होंने अपना एक जो शार्प माइंडेड की जो टेक्निक्स थी उसको फॉलो किया ओवर द इंडिया, ओवर द कंट्री. सो बिफोर यू रीड इन दिस चैप्टर, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help to clear your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. Actually, ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपको कुछ पिक्टोरिकल ग्लिम्पस, ऐसी झलक दिखाई जा रही है पिक्चर्स के माध्यम से. पिक्टोरिकल पैटर्न पे इस चैप्टर को एक्सप्रेस किया गया है आपके सामने, और ये जो पिक्चर्स है ये हमको उस सेंचुरी की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताती है, उस इतिहास के बारे में जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था. ये तकरीबन 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य की सारी घटना है, इनकी झलक है. ओवरऑल तो लाइन टू लाइन इस चैप्टर में नहीं एक्सप्रेस किया गया है, नहीं नरेट किया गया है, लेकिन एक छोटी सी झलक है जो आपके 17 से 57 से लेके 1857 तक का जितना भी अत्याचार रहा है ब्रिटिशर्स का, या जो भी वाइट मैन्स थे, जो अंग्रेज थे, उनका हमारे भारत में, उसकी एक छोटी सी झलक है इस चैप्टर में. तो ये जो चैप्टर है इसमें हम पिक्चर के थ्रू हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी कि जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था भारत में स्वतंत्रता के लिए 1857, वो क्यों हुआ था, क्या वो सफल हुआ था, और सफल किस किस
के योगदान से वो सफल हुआ। तो सबसे पहले जो हमको इस चैप्टर में एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक द मार्टियर्स करके एक हेडिंग दी गई है। एक्चुअली मार्टियर्स का मतलब ये होता है कि जो शहीद हो चुके हैं, जो देशभक्त शहीद हो चुके हैं और they finally adopt the death as a patriotic, as a true patriotic, एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने अपने प्राण दिए, उनको हम कहते हैं मार्टियर्स, मतलब देशभक्त और जो शहीद हो चुके हैं। So, oh my countrymen, let your eyes fill with the tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs. Actually the picture represents a function that took place in Delhi. तो ये जो पिक्चर है ये दिल्ली के एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें लता मंगेशकर सिंगिंग ए मेरे वतन के लोगों, जिसमें लता मंगेशकर पिक्चर में गा रही हैं गाना ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो बहुत ही कॉमन सॉन्ग है, बहुत ही फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग है और बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग सॉन्ग भी है। इसको लता मंगेशकर जी गा रही हैं एंड जो लोग बैठे हुए हैं, देयर आर 3 पीपल वर सिटिंग इन द चेयर जस्ट लाइक द पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी कैन ऑल्सो बी सीन इन दिस पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको ये तीनों लोग भी दिखाई दे रहे हैं विद द लता मंगेशकर हु इज़ परफॉर्म ए मेरे वतन के लोगों इन द फंक्शन ऑफ द मार्टियर्स। मार्टियर्स फंक्शन क्यों होता है? मार्टियर्स फंक्शन होता है टू पे द कंट्रीब्यूशन, टू पे द ट्रिब्यूशन, टू पे द ग्रैटिट्यूड टू द मार्टियर्स पीपल्स हु वर नो मोर, जो अब जिंदा नहीं है और जिन्होंने अपने प्राण दे दिए एक सच्चे देशभक्त के रूप में, जिनको हम हमेशा याद करते हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें लता मंगेशकर जी के सॉन्ग से ये पूरा फंक्शन जो था वो इनॉग्रेट हुआ था, जिसमें ये लता मंगेशकर के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड इंदिरा गांधी भी इस पिक्चर में आप आसानी से देख सकते हो। एंड द कंट्री actually he want to spread the rules over the country. Who really wanted to spread the rules on the country? The Britishers, the white men, you can say that the foreigners, जो foreigners थे, जो अंग्रेज थे, वो हमारे पूरे देश में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। So in this story as a glimpses, so this is win the title glimpse of past. So to pay the contribution and tribute gratitude by the to the martyrs by this type of the program. And these are a very famous persons who are sitting here in the 3 chairs except the Lata Mangeshkar. You can see very clearly in this picture. So let's we start this chapter. The company's conquest. Conquest मतलब होता है जीत। द कंपनीज मतलब जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, तो जो कंपनी की जीत हुई, कैसे कैसे उन्होंने जीत हासिल की, किस दौरान 1757 से लेके 1849 तक उनको कौन कौन सी जीत, कामयाबी, सफलता मिली हमारे भारत में, उसके बारे में इस पूरे एक पिक्चर में पिक्चराइजेशन के थ्रू आपको बताया गया है कि किस तरीके से उनको इसमें जीत मिली। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, चूँकि ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास बहुत सारे वेपन्स थे। वेपन्स मतलब औजार थे, शस्त्र थे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। किसके कंपैरिजन में? इंडियंस के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडियन की जो सेना थी, जो आर्मी थी, वो इतनी पावरफुल नहीं थी इन दैट टाइम बिकॉज द लैक्स ऑफ द सफिशिएंट वेपन्स, उनके पास पर्याप्त औजार नहीं थे। सो with its superior weapons, Britishers East India Company was extending its power in 18th century। तो इसके माध्यम से 1800 सेंचुरी में पूरे भारत में उन्होंने राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। और देखिए आप इस मैप में देख सकते हो कि जो इंडिया है, इंडियन प्रिंसेस हैं, वो आपके येलो पार्ट में है, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही छोटे पार्ट में दिखाए जा रहे हैं इस पूरे मैप में कि किस तरीके से एक छोटा सा स्थान पहले उन्होंने अचीव किया था इन 1765 में। अब हम देखते हैं कि इंडियन प्रिंसेस थे और शॉर्ट साइडेड, जो इंडियन प्रिंसेस थे उनकी जो दूर दृष्टि थी ना वो बहुत छोटी थी, मतलब वो बहुत दूर का नहीं सोचते थे, वो बहुत शॉर्ट साइडेड थे, बहुत छोटा सोचते थे, बहुत नज़दीक का सोचते थे कि आज तो हमारे देश में ये अंग्रेज़ हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि क्या ये अंग्रेज़ धीरे धीरे करके पूरे देश में फैला देंगे अपना जो भी उनका अधिकार है वो स्थापित कर लेंगे क्या वो पूरे देश में। तो वो इतना फॉर साइडेड नहीं थे, वो हमेशा शॉर्ट साइडेड रहते थे। सो दैट द अपस्टार्ट
Raja Rajba called the English merchants. They will help me to defeat, and the people had no place due to such a constant fight. Actually जो भारतवासी थे उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठा सकते थे. उनको लगता था कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, एटलीस्ट एक हमारे देश में शांति तो फैली हुई है, अगर वो अत्याचार कर रहे हैं तो थोड़ा अत्याचार उनका सहन कर लेंगे. सो इंडियन प्रिंसेस वॉज शॉर्ट साइडेड, वो बहुत दूर का नहीं सोचते थे कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है. And the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. और ये जो लोगों की धारणाएं थी, ये जो शॉर्ट साइटेड उनका जो नेचर था, उसके थ्रू उन्होंने इस चीज़ की हेल्प ली. ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये लोग आपस में ही एक दूसरे के लॉयल नहीं हैं, ये लोग अपने लिए ही वफ़ादार नहीं हैं, तो ये देश को क्या बचाएंगे. और इसका उन्होंने भरपूर जो मौका था उसका आनंद उठाया और यही उनको हेल्प करता गया वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरी इंडिया में गवर्न करने के लिए. अ फार सीइंग रूलर्स लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ द मैसूर. लेकिन जो टीपू सुल्तान थे वो बहुत ही ज़्यादा फॉर साइटेड थे, वो दूर की सोचते थे, वो बहुत ब्रेव थे और हमेशा वो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़े भी और अंत में उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए. थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन अ कंट्री नाउ एंड नो वॉर्स एंड नो लुकिंग बाई दस एंड इट्स अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश. कुछ लोगों का देखो क्या था, अंधविश्वास था, यू कैन से दैट द ब्लाइंड फेथ, कि इंडियंस ही कह रहे थे कि कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा करो कि इस टाइम हमारे पूरे देश में शांति तो है, कोई मार काट तो नहीं रहा है एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है. हो सकता है इट्स अ गॉड हु सेंट द ब्रिटिशर्स, हो सकता है ब्रिटिशर्स को भगवान ने ही हमारे पास भेजा हमारी रक्षा करने के लिए. मतलब ये इंडियंस के जो पीपल्स थे उनकी सोच थी कि शांति बनी रहे, देश से लेना देना नहीं था कि देश बचा रहेगा कि नहीं रहेगा. एटलीस्ट एट द प्रेजेंट टाइम एवरीथिंग विल बी वेरी काम, वो बहुत सब शांत रहे, दैट इज़ सफिशिएंट. सो हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट दिस कंस्क्वेट. तो किस तरीके से इंडियंस ने रिएक्ट किया इस जीत पे, जब ब्रिटिशर्स हर स्टेप पे जीत हासिल कर रहे थे. तो इंडियंस की क्या मतलब उन्होंने कैसा रिएक्शन किया. उन्होंने कहा कि आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम. उन्होंने कहा कि हमारी जो डेस्टिनी है वो पूरी तरीके से लिंक्ड हो गई है उनसे, हम जुड़ गए हैं पूरी तरीके से और हम चाहकर भी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते. किससे अलग नहीं कर सकते? ब्रिटिशर्स से. बिकॉज ऑफ दैट he always have the blind faith that it is a God who sent the Britishers, कि हो सकता है गॉड ने ही ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा है हमारी रक्षा करने के लिए और हमारा मालिक बनाने के लिए. एंड द वाइट मैन हैज़ किल्ड द डेथॉर्न आवर किंग्स. और जो वाइट मैन थे वो हमारे राजाओं को मारे जा रहे थे, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, अभी हम ज़्यादा विद्रोह करेंगे तो हम वन बाय वन सबकी हमारी जान चली जाएगी, वन बाय वन हम सभी भगवान के पास चले जाएंगे. तो एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम शांति बनी है और अगर वो हमारे देश में राज करना चाहते हैं सो के हम उनसे वो हमारे देश में आएंगे, राज करेंगे, लेकिन कुछ हमें भी तो सिखा कर जाएंगे. तो हो सकता है ईश्वर ने उन्हें हमारे लिए भेजा हो. तो ये एक अंधविश्वास था जो उनके दिल दिमाग में पहुंच गया था. And now the white man has killed the Drethorn, our kings, and some kings were not good, but after all they were of this land. Actually कुछ kings जो थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे और कुछ बाद में अपना जो land थी, अपनी ज़मीन थी, वो भी गंवा चुके थे. And now we have become a slaves of the foreigners. और अब हमारे पास जो कुछ भी था, हमारी ज़मीन जायदाद, हमारा मालिकाना अधिकार जिसमें भी था, वो सब अंग्रेज को जो राजा थे या वहाँ की जो प्रजा थी वो सब गंवा चुके थे और उनके पूरी तरीके से गुलाम बन गए थे. मतलब किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाते. दैट्स वाई ही वेरी इजली एक्सेप्ट द डिफीट्स इन फ्रंट ऑफ द फॉरेनर्स, कि हम इनके स्लेव बनने के लिए तैयार है. स्लेव्स मतलब होता है गुलाम. तो स्लेवरी करने के लिए वो तैयार थे, गुलामी करने के लिए वो तैयार थे कि कम से कम कुछ भी है शांति तो बनी है. सो थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है ब्रिटिश रूल. अब हम इस चैप्टर में इस पेज में ये पढ़ेंगे कि ब्रिटिश का रूल किस तरीके से स्थापित हुआ 1767 से लेके 1836 तक. ये ग्लिम्पस दिया जा रहा है आपको. होल स्टोरी, पूरा जो भी अप्स डाउन हुए या जैसे भी मारा काटा गया है, जो भी युद्ध हुए, जो भी वार हुए, उन सबको डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया है. एक शॉर्ट ग्लिम्पस के तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है वन बाय वन.
सो रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड इंडियन लाइक द अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। अब देखिए ब्रिटिशर्स का जब रूल था यहाँ पर इंडिया में, तो लोगों में कुछ धार्मिक जो लीडर्स थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, वो प्रीज्ड, वो अपने आइडियाज़ को एक तरीके से डिलीवर कर रहे थे लोगों में, एक अछूआछूत फैला रहे थे, बाल विवाह भी स्टार्ट हो गया था और अंधविश्वास भी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि उस टाइम जो था ना वो एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन का माहौल था, कोई बहुत शिक्षित नहीं था और कोई चाहता भी नहीं था कि शिक्षा हमें ग्रहण करनी ज़रूरी भी है। एनीवन हु क्रॉस द सीज लव्स हिज रिलीजन। और जो धार्मिक गुरु लोग थे या धार्मिक लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि अगर समुद्र पार करके तुम लोग गए तो तुम्हारा जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। मतलब उस टाइम में ये अंधविश्वास था कि समुद्र पार करके जो जाएगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो एक तो चाइल्ड मैरिज, दूसरी छुआछूत और तीसरा समुद्र पार करके जाने में आपके धर्म की नष्टता, ये तीनों जो अंधविश्वास थे ये पूरी तरीके से समाज में फैल चुके थे और इन्हीं सब ब्लाइंड फेथ्स का फॉरेनर्स ने फ़ायदा भी उठाया। ऑल द माइजरीज इन द वर्ड्स इज़ ड्यू टू द वुमेन। और कुछ लोग कहते थे कि वुमेन्स के कारण जितनी विपदा आपदाएँ आ रही हैं संसार में वो वुमेन के कारण, अगर नारी ना होती तो कोई भी विपदा ना आती। The truth was the Indians has lost the self-respect the British second them. एक्चुअली फर्स्टली जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खो दी थी, उनको स्वाभिमान उनके अंदर था ही नहीं, वो गुलामी करने के लिए तैयार रहते थे एट द टाइम, और उनको लगता था कि हम गुलामी से एटलीस्ट अपनी जान तो बचा सकते हैं। एंड द नेटिव्स आर द अनवर्दी ट्रस्ट इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। और अपनी ईमानदारी पे मतलब उनको अपनी ईमानदारी तो कहीं उनके पास थी ही नहीं, उनको लग रहा था कि हम इनकी गुलामी करके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा कर ही इस देश को बचा सकते हैं। टू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। द नेटिव, जो नेटिव थे वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो इतने विश्वसनीय थे एंड इनकैपेबल भी थे, अयोग्यता भी थी उनमें ऑनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ट्रू। और लोग आपस में बात करते थे जितने ब्रिटिशर्स थे कि योर ऑनर आई एम वेरी ऑनेस्ट, और आपस में ही वो लोग अपने आप को इतना एक्सप्रेस कर देते थे अंग्रेज़ों के सामने जाकर कि मैं बहुत ही विश्वसनीय हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूँगा, आप बस हमारे घर परिवार का और हमारे जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करिए और हम आपको एक मतलब हम आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे। एंड बीइंग अ मर्चेंट्स द ब्रिटिश wanted quick the profits। और इसी बेवकूफ़ी की वजह से जो वहाँ के ब्रिटिशर्स के जो लोग थे वो अपना फ़ायदा उठाते जा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, जो भी मर्चेंट्स थे, जो भी सैनिक्स थे, जब ब्रिटिशर्स वांटेड क्विक प्रॉफिट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रॉफिट पाना चाहते थे, देयर हैवी टैक्सेस, वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे, फोर्स कर रहे थे फार्मर्स को, किसानों को कि वो अपनी ज़मीनों को अबेंडन कर दें, मतलब छोड़ दें, त्याग दें। बट योर मैन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन जो लोग थे वो कह रहे थे कि हम लोग अपनी ज़मीन कैसे छोड़ दें, तो अंग्रेज़ कह रहे थे कि तुम अपनी ज़मीन छोड़ दो और इसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। यू आर स्टिल द एरियस एंड इफ़ यू डोंट पे द नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू द जेल। एक्चुअली क्या हो रहा था कि सारी ज़मीन उनकी हड़प ली जा रही थी और उन अगर जो भी लोग अपनी हेल्प के लिए उनसे उधार लेते थे किसी चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स से, जो उस टाइम के देशवासी थे, तो अगर वो एट द करेक्ट टाइम वो उधार नहीं चुका पाते थे अपना खेत, तो या तो उनके खेत हड़प लिए जाते थे और या तो उन पर इतना टैक्स लगा दिया जाता था कि वो टैक्स ही भरते भरते उनको अपने खेत जीतने की नौबत ही नहीं आ पाती थी और इस तरीके से वो अपना सब कुछ गंवा देते थे। बिकॉज ऑफ दैट द हाई रेट्स ऑफ द टैक्सेस, इतना टैक्सेस लगा देते थे अंग्रेज। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड विच गेम दैम मोर प्रॉफिट। फिर ब्रिटिशर्स ने एक नई कूटनीति चालू की, सोची कि और इससे ज़्यादा हम जो हमारा प्रॉफिट है वो हम कैसे कमा सकते हैं। एक अदर आइडिया क्या है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन द ब्रॉट इन इंडिया। उन लोगों ने ये कूटनीति अपनाई कि क्यों ना हम सारा सामान लेकर जाएं यहाँ से, भारत से सारा सामान जो यहाँ पैदा होता है, जैसे आपके कपास हो गया या जो भी चमड़ा हो गया या जो भी गुड्स मतलब जो भी चीज़ें होती हैं व्यापार से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो सब मैन्युफैक्चरिंग हम अपना लगाएंगे और सामान हम इंडिया से ले जाएंगे। तो जो सामान यहाँ इंडिया से ले जाते थे उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन वही सामान अगर
भारत से वो यहाँ लाते थे तो वो बहुत हैवी टैक्सेस पे वो सामान यहाँ पे ख़रीदा जाता था। मतलब अपना ही चीज़ हम अगर मैन्युफैक्चरिंग के उससे वहाँ से ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो ये हमें महंगी पड़ रही बिकॉज ऑफ द हाई टाइप्स ऑफ द रेट्स, क्योंकि हमारी चीज़ें, मटेरियल हमारा और बनी वहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पर जब हम अपनी ही चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो हाई टैक्सेस हमको पे करने पड़ रहे हैं। तो ये इन लोगों ने ये कूटनीति अपनाई कि क्यों ना हम भारत से सारे सामान को यहाँ से लेकर जाएं और इंपोर्ट करें, और वहाँ से जब हम दोबारा भारत लाएँ तो यहाँ पे इतना हैवी टैक्सेस लगा दें कि इंडियंस उस सामान को ख़रीद ही ना पाएँ, और ना ही वो इतना टैक्सेस झेल पाएंगे और ना ही उनके सामान को कोई ख़रीद पाएगा। तो इंडियंस का लॉस तो वैसे ही है। अ गुड आइडिया, दूसरे फॉरनर्स ने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगिन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्री। अब इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ही कानून बनाए और पूरे इंडियन इंडस्ट्री को कैप्चर कर लिया। Now the invisibility, the famines allowed between 1822 and 1836, 15 lakh Indians died of the starvation, and the British politics renewed and ruined the export assistance and their business. एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, पूरे देश में इतनी भुखमरी, इतनी गरीबी फैल गई थी कि मतलब किसी के पास कोई उपचार नहीं था। पहले वो अपनी पेट पूजा करते कि वो अपना खेत बचाते। तो इन्वेंटिबिलिटी फेमिनिन फॉलोअर्स बिटवीन 1822 एंड 1836 के बीच में कम से कम 15 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी भूख के मारे। स्टारवेशन मतलब होता है भूख के मारे। सो द ब्रिटिशर्स पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि उन्होंने रूइंड यानी बर्बाद कर दिया था एक्सपर्ट्स को, सारे आर्टिशियंस को, जितने भी कलाकार थे, मज़दूर थे, फार्मर्स थे, और उनके बिज़नेस को इतना बर्बाद कर दिया था कि भूखे प्यासे लोग मर रहे थे। एटलीस्ट खाने के लिए अगर उनके पास कुछ होता तो कोई मरता नहीं, बट उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख लोगों की मौत हुई थी ड्यूरिंग इन दैट टाइम। नेक्स्ट आपका आया 4th पॉइंट, राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन रॉय कौन थे इन शॉर्ट पे। राजा राम मोहन रॉय अ लर्न्ड अ मैन फ्रॉम अ बंगाल। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो बंगाल से रिलेटेड थे और वो सब कुछ समझते थे, क्या गलत है क्या सही है, उनके देश के साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। लेट अस नॉट द डिस्पाइज आवर सेल्फ एंड आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट। उन्होंने कहा कि हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो बहुत महान है और कोई उसे छीन नहीं सकता। एंड वी आर कैपेबल ऑफ अ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम अच्छे से बेहतर पा सकते हैं अगर हम अपने संस्कारों से जुड़े हैं। वी मस्ट फाइट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें अपनी सोसाइटी के लिए अपने समाज से के साथ रहकर लड़ना चाहिए और अपने समाज से अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास को भगाना चाहिए। हैव बीन रनिंग अस, र्यूनिंग अस, जो हमें बर्बाद कर रहा है, जो हमें र्यून कर रहा है, उसे हमें अपने देश के बाहर निकाल फेंकना चाहिए। किसको? सुपरस्टिशंस को, यानी अंधविश्वास को। कौन से अंधविश्वास? ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उन्होंने अपनी पत्नी उमा से कहा कि काउज आर ऑफ अ डिफरेंट कलर्स, की गाय भले ही डिफरेंट कलर की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन हर गाय का जो कलर होता है दूध का वो सफ़ेद ही होता है। सो डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, जो डिफरेंट टीचर्स होते हैं उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं बेशक, बट द एसेंस, लेकिन जो उनका एसेंस होता है, जो उनका मतलब होता है, जो उनका प्रॉफिट होता है, जो उनका एम होता है ऑफ एवरी रिलीजन, हर धर्म का, वो सेम होता है। एज लाइक द काउज आर डिफरेंट कलर, काउज डिफरेंट कलर की है, बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। एज लाइक the teachers are follows the different types of the opinion, but the essence of that every religion in the same। तो उसी तरीके से हमारे भारत में रहने वाले लोगों का धर्म भले ही अलग हो, लेकिन हम संस्कारों से और अपने हिंदुत्वता से जुड़े हुए हैं, और अगर हम एक हो जाएं तो इस दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, और ब्रिटिशर्स तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ही वॉज अट्रैक्ट बाई द साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो मॉडर्न नॉलेज और साइंस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी थे। नॉलेज शुड बाय द प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, और लोगों का कहना था
मतलब राजा राम मोहन रॉय का स्पेशली कहना था कि किसी भी ज्ञान को प्रैक्टिकली प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। आप अंधविश्वास के थ्रू जिसे आप देख नहीं सकते, जिसे आप सुन नहीं सकते, जिसे आप समझ नहीं सकते, केवल मान्यता के तौर पे आप उसे मान के बैठे हो, तो ये बात गलत है। जिसको आप देखो, समझो, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से देखो, सुनो, समझो और उसे अपने ऊपर धारण करने की कोशिश करो। ऐसा ही ज्ञान आपको आपके बौद्धिक सुख आपको प्रदान करता है और आपके अंदर सर्वांगीण विकास करता है। लेकिन अगर आप अंधविश्वास में जियोगे तो ये आपकी ज़िंदगी के साथ साथ पूरे समाज को, पूरे देश को भ्रष्ट कर देगा। ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर, उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया एंड बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके इस न्यूज़पेपर को 1823 में रोक दिया पब्लिश होने से। He crossed the seas and went to the England to see the what made British powerful. Then he told them. Actually उस समय लोगों से कहा जाता था, जो हमारे लीडर्स थे, जो रिलीजियस लीडर थे, जो गुरु थे, धर्म गुरु थे, वो कहते थे कि अगर आप समुंदर पार करके जाओगे शिकायत करने या कुछ कहने तो कोई फ़ायदा नहीं, आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा नहीं सोचा। ही क्रॉस द सी, उन्होंने सी भी पार किया और वो ब्रिटिशर्स के पास इंग्लैंड भी गए और उन्होंने कंप्लेन भी की वहाँ के लोगों से, ब्रिटिशर्स के पावरफुल जो गवर्नमेंट थी, कि आप लोगों के जो मेंबर्स हैं वो हमारे इंडिया में गए हुए हैं और वो हमारा भला करने से ज़्यादा वो हमें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। वे एक्सेप्ट योर रूल्स, हमें आपके जो रूल्स हैं, जो आपका अधिकार है, जो आपका गवर्न है, वो हमें स्वीकार है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज अ सब्जेक्ट, लेकिन आपको भी हमें एक सब्जेक्ट के रूप में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम भी कुछ मायने रखते हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है। तो हम आपके रूल्स के अगेंस्ट हम नहीं जा रहे, हमें आपका हर रूल, उसके हर नियम, आपका हर अधिकार हमें मंजूर है, लेकिन आपको भी हमें एक सबसेट के जैसे एक ट्रीट करना चाहिए कि हाँ, हम भी कुछ मैटर करते हैं, हम ऐसे जानवरों के जैसे जीने के लिए नहीं बने। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी मनुष्य जाति की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट यू मस्ट बी रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ रूलर, कि एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपने जो उनके सैनिक हैं या अपने जो देशवासी हैं उनके लिए, या जहाँ पर आप गवर्न कर रहे हो, रूल कर रहे हो, शासन स्थापित कर रहे हो, वहाँ की जनता के प्रति आपका क्या कर्तव्य हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। ऐसा उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला इन इंग्लैंड। नाउ ऑपरेशन, अब टाइम आ गया था ऑपरेशन का। सो बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू द ऑपरेस इंडियंस इन द 1818। एक्चुअली जो ऑपरेस होता है उसका मतलब होता है दबाव, किस चीज़ का ऑपरेस हो रहा था उस दौरान 1765 से लेके 1835 तक। In the 1818 they had the passed regulation third under in the Indian could be jailed without trial in the court। एक्चुअली फिर उन्होंने एक नई नीति अपनाई, ब्रिटिशर्स ने एक नया लॉ को प्रताड़ित किया। वो ये था कि किसी को भी कभी भी जेल भेज सकते हैं बिना किसी कोर्ट में भेजे, बिना किसी मुकदमे के चले हम किसी को भी जेल भेज सकते हैं, किसी भी इंडियन को जेल जाना पड़ सकता है। All the time British officer in India drew big the salary and also made the fortunes in private business। और वो प्राइवेट बिजनेस में इतना कमा खा रहे थे कि उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया था, इतनी अच्छी सैलरी दे रहे थे वो अपने लोगों को, अपने ऑफिसर्स को, और ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे थे और अपने देश को भी फ़ायदा उठा रहे थे। By the 1829 the Britain was the exporting British goods and brought 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। उन्होंने इंडिया से 7 करोड़ रुपीज़ इन दैट टाइम प्रॉफिट कमाया। जब आज के ज़माने से बहुत 300-400 साल पुरानी बात है ये, कि जब उन्होंने 7 करोड़ रुपए का फ़ायदा अपने ब्रिटिश को प्राप्त कराया, केवल भारतीयों की ज़मीन हड़प के, भारतीयों के साथ धोखा करके उनके सामानों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लगाकर हाई टैक्सेस उन पे फॉलो करके इस तरीके से उन्होंने घोटाला किया और अपने देश को और अपना खुद का अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ का फ़ायदा उन्होंने दिलवाया और ख़ुद भी हासिल किया।
नाउ गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम। अब गवर्नर जो जनरल थे उन्होंने बैंट्रिक, उन्होंने रिपोर्ट की घर लौट जाने की। एंड द बोन्स ऑफ द कॉटन वेव्स द ब्लीचिंग द प्लांट्स ऑफ इंडिया। और उन्होंने कहा कि जो बोन्स ऑफ द कॉटन है, मतलब कॉटन की जो बोन है उसको हम, कॉटन जो है जिसको हम कपास कहते हैं, उसका जो व्यापार है, उसकी जो खेती है वो तो भारत में होती है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम कपास भारत में उगाएं और वो कपास हम अपने ब्रिटिश भेजें और उससे वहाँ से कपड़े वपड़े मशीन से बन के बाकायदा जब वो इंडिया आए तो वो इतने हाई टैक्सेस में हम उन्हें बेचें, सेल आउट करें कि इंडियंस की तो औकात के बाहर है उस सामान को ख़रीदना। अब देखिए पूरी की पूरी जो मटेरियल है वो इंडिया का है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? ब्रिटेन करता है। और जब वही मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है तो इंडियंस अपने ही सामान को डबल रेट पे खरीदते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ? ब्रिटिशर्स का हुआ। Now the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die. इतनी लूट मचा रखी थी ब्रिटिशर्स ने इंडियंस के ख़िलाफ़, उनकी इंडस्ट्रीज़ को छीन के लोग मरने लगे थे। एक दूसरे को मारने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो तो बिल्कुल भी नहीं चूकते थे कि वो किसी भी इंडियन को मारने से बचें। नाउ द डिससेटिस्फैक्शन। अब डिससेटिस्फैक्शन क्या था, किस तरीके का डिससेटिस्फैक्शन फैला हुआ था? एजुकेशन इन इंडिया वो इन पर्शियन एंड द संस्कृत। उस समय 1835 से 1856 तक जो एजुकेशन का मोड था वो कौन सी भाषा का था? पर्शियन एंड संस्कृत भाषा का था। इन 1835 में जो एजुकेशन की जो लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी और या तो संस्कृत थी। इंग्लिश मैन नेम द मैकॉले सजेस्टेड अ चेंज। तो जिन्होंने इंग्लिश जगत में के जो पिता जिनको कहा जाता है, इंग्लिश जगत के पिता, द फादर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज द मैकॉले। वो मैकॉले थे और मैकॉले ने ये बोला कि क्यों ना हम पूरे भारत में इंग्लिश अंग्रेज़ियत को ले आएँ और हिंदुत्वता के लिए उनकी भाषा, उनकी मातृभाषा को उनसे दूर कर दें। तो ऑटोमेटिकली जब वो हमारी भाषा सीख जाएंगे तो वो हमारी ही बात करेंगे, हमारे अपने मुंह से वो हमारा ही व्याख्यान करेंगे। तो ये मैकॉले का सजेशन था कि क्यों ना पूरे भारत में हम इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज एंड कंपल्सरी लैंग्वेज के रूप में पारित करें। एंड वी शुड टीच द नेटिव। और हम यहाँ के जितने देशवासी हैं उनको हम जो एजुकेशन दें थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही दें। तो मैकॉले जो इंग्लिश का इन्वेंशन किसने किया था? इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे पहले भारत में कौन लाया था? दैट वॉज मैकॉले। मैकॉले भारत में इंग्लिश को लाए थे। एंड इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom the British gave the pretty jobs under them incidentally, and it produced a new generation of the intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material condition. For that we must convey our grievance to the British parliaments. फिर उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना, इससे तो हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम अंग्रेज़ियत लाएंगे भारत में तो इससे तो फ़ायदा सीधे साधा हमारा ही है। क्यों फ़ायदा हमारा है? क्योंकि हमारी भाषा जब ये लोग देशवासी हिंदू सीखेंगे तो हमारे ही गुलाम बने रहेंगे, हमारी भाषा बोलेंगे। और हम वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स, और हम अपने ब्रदर्स के थ्रू उन देशवासियों को, यानी हिंदू लोगों को, या जो हमारे भारतवासी हैं, मतलब हमारे नहीं, मतलब उनके अगेंस्ट जो भारतवासी हैं जहाँ पे वो रूल कर रहे हैं वहाँ के लोगों को वो भाषा सिखा देंगे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। और वहाँ पे वो अपनी माली हालत, मतलब एक इंटाइसमेंट था जनता के प्रति। तो ये जनता का व्यू था कि अगर हम जो ब्रिटिशर्स हैं वो ठीक तो कह रहे हैं, अगर अंग्रेज़ियत वो फैलाना चाहते हैं, अंग्रेज़ी भाषा यहाँ फैलाना चाहते हैं तो वो फैलाएं। अंग्रेज़ी भाषा तो ख़राब नहीं होती क्योंकि हर जगह तो अंग्रेज़ी भाषा का उपयोग है, तो हमें तो इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए भारतवासी ये नहीं सोच रहे थे कि अंग्रेज़ी भाषा नहीं फैला रहे थे, वो एक्चुअली वो अंग्रेज़ियत लाना चाहते थे भारत में, तो ये तो गलत था। लेकिन यहाँ के जो पीपल थे, जो इंडियंस थे, वो इतने शॉर्ट साइटेड थे कि वो इतनी दूरदृष्टि सोच ही नहीं रहे थे। वो ये सोच रहे थे वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। उन्होंने सोचा अरे वाह, हमारे ब्रदर्स तो इंग्लिश बोलेंगे। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, उनकी माली हालत भी सुधर जाएगी। फॉर दैट वी मस्ट डू कन्वे आवर ग्रीवनेस, और हमारे दुख परेशानियों से हम उबर भी जाएंगे टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट्स, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ये हमें हेल्प करेगी। तो हमें अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए।
बाय द 1856 द ब्रिटिश हैड द कंपेयर द होल ऑफ इंडिया। अब आप देखिए इस मैप में आपको जो स्टेट्स है इसमें येलो पार्ट इंडिया का रह गया है एंड पूरा का पूरा पार्ट ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिश एरिया पिंक में है एंड जो हमारा इंडिया है वो हमारा पिंक में सॉरी येलो में है। तो अब उधर जो हमने फर्स्ट मैप देखा था उसमें हमारा जो येलो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा था और पिंक पार्ट थोड़ा था, लेकिन देखिए धीरे धीरे दीमक के जैसे ये जो अंग्रेज़ थे ये पूरे देश पे फैल गए थे और अपने आप को एक्सपेंडेंट कर दिया था ओवर द कंट्री। उन्होंने अब 1856 में पूरा राज्य स्थापित कर लिया था भारत में। They cared little about the needs of the Indians. They cared little about the needs of Indian. Actually जो members थे जो डिस्कशन कर रहे थे about the language of the English, वो ये चाह रहे थे, उनको केयर थी, वो परवाह कर रहे थे अपने इंडियंस की, इसलिए वो फॉलो करने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है हम आपको फॉलो करेंगे, आप इंग्लिश लैंग्वेज हम लोगों को सिखाइए। Our kings have to become the puppets, और हमारे जो किंग्स थे, जो हमारे राजा थे, वो बिल्कुल कठपुतली बन गए थे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पपेट्स? कठपुतली बन गए थे। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब, और वो लोग थे इंडियंस थे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमने तो अपना सारा जॉब नौकरी सब खो दी एंड लैंड्स अपनी ज़मीन भी खो दी। दे आर द कन्वेंटिंग आवर ब्रदर्स, और अब तो वो हमारे कन्वेंटिंग हमारे ब्रदर्स की उन्होंने मतलब हमारी माली हालत भी ख़राब हो गई है, हमारे ब्रदर्स को भी हमसे छीन लिया, मतलब जो और भी हिंदू वासी हैं उनको भी छीन लिया है, उनको अगेंस्ट खड़ा कर लिया है हमारे, ये तो उन्होंने बहुत गलत किया। You only talk to do something to drive then quote, हमें लगता है कि हमें you only talk do something to drive then out। अब हमें लगता है कि हमें अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, और अभी भी हम कौन सा जी पा रहे हैं, तो तब भी मरेंगे और अब भी मरेंगे, तो क्यों ना हम विद्रोह करके मरें, कम से कम हमें सेटिस्फेक्शन तो होगा कि हाँ हमने अपने देश के लिए एटलीस्ट कुछ तो किया। द स्पार्क्स, अब जो स्पार्क्स था, अब देखिए क्या हुआ, अब तो युद्ध छिड़ चुका था। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, लोगों को टैक्सेस हाई टैक्सेस बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल में भी द सेंथॉल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, बंगाल में जो सेंथॉल्स थे उन्होंने अपनी ज़मीन भी खो दी थी। अंडर मतलब पूरे भारत में इन लोगों ने बदतमीजियाँ की थी, पूरे भारत में अपना अधिकार स्थापित किया था। तो भारत के हर कोने में हर धर्म का व्यक्ति अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गया था। अब जब सोचिए भारत में हर तरीके का धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब आपस में एक हो जाएं तो क्या कोई अंग्रेज़ या उसकी अंग्रेज़ियत हमारे इंडिया में कांस्टेंट हो सकती है? नेवर एवर, कभी नहीं हो सकती। तो देखिए उस टाइम इस बुद्धिमत्ता ने अपना खुद ही फेवर किया और एक साथ होकर एकजुट होकर इन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और एट लास्ट में इन्होंने अपनी जीत को हासिल भी किया। तो यहाँ पे बंगाल्स के लोग थे जो सेंथॉल्स, उनकी भी ज़मीनें हड़प ली गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, और उनके ऊपर भी हाई टैक्सेस लग गया था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो इनसे बदला लेना है। फिर उन्होंने जो यूरोपियन एंड देयर सपोर्ट्स अलाइक, और उन्होंने ऐलान छेड़ने की बात करी। एंड डिसकॉन्टिनेंट वॉज अ ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो उनसे भी बहुत उनमें भी बहुत ज़्यादा मतलब विद्रोह होने लगा था, जो इंडियंस आर्मीज़ थी और ब्रिटिशर्स आर्मी थी, क्योंकि वो आर्मीज़ में भी जंग छिड़ चुकी थी। सो द वाइल्ड सोल्जर्स गेट यूज द पे मेंशंस टू लाइव द सर्वेंट्स, और जो अपने ही सैनिकों को, मतलब हमारे भारत के जो सैनिकों थे उनको गुलाम बना रखा था, और अपने सैनिकों को ब्रिटिशर्स ने एक ह्यूज पेमेंट दिया था, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी देते थे वो अपने सैनिकों को, और हमारे भारत के जो सैनिक थे उनको गुलाम बना रखा था। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो द प्रमोशन, और उनका प्रमोशंस भी नहीं होता था भारतवासियों का, लेकिन प्रमोशंस किसका करते थे? अपने ब्रिटिशर्स सैनिक का करते थे। एंड द अंग्रेज आस्क टू द क्रॉस द सी which is against your religions, who is the topiwalas to abolish your age old customs। द अंग्रेज आस्ट, अंग्रेज ने पूछा कि क्या तुम लोग अपना ये समुद्र को पार करके जाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो ये है कि तुम समुद्र पार करके जाओगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तो तुम कैसे हमसे जंग लड़ सकते हो? वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। फिर उन लोगों ने सोचा हम हर काम करेंगे, हम समुद्र भी पार करेंगे, क्योंकि हमें अंग्रेज़ों को उनकी अंग्रेजियत को अपने देश से बाहर निकाल फेंकना है। उस समय क्या हुआ, मंगल पांडे जो थे वो मंगल पांडे अटैक द एडजेंट टू द रेजिमेंट वॉज एक्सक्यूटेड। उस समय मंगल पांडे जो थे वो भी उसी सैनिकों के बीच में थे, और उन्होंने भी
जो सैनिक थे हमारे भारत के उनका सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जो मंगल पांडे हैं कि वी मस्ट ड्राइव, हम ज़रूर ड्राइव करेंगे और हम ज़रूर समुद्र पार जाएंगे इन ब्रिटिशर्स को मारने के लिए। सो सिपाही, उस टाइम में सिपाही को सिपाही कहते थे, तो सिपाही मंगल पांडे सिपाही ने अटैक किया, एडजुटेंट किया ऑफ हिज रेजिमेंट्स एंड वॉज एक्सक्यूटेड, और इतना फैलाव मचाया, अपना इतना विद्रोह किया कि उन लोगों को वहाँ पे मार गिराया। तो ये तो मतलब एक बहुत अच्छी स्टोरी है और इसको वन बाय वन हम पढ़ रहे हैं तो हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में इसको हम अचीव कर रहे हैं। व्हाट्स द रियल स्टोरी, व्हाट्स द मैटर ऑफ इनसाइड दिस स्टोरी। तो इसको वन बाय वन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से हम उसको एंटरटेन भी कर पा रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्ट, दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और हज़ारों सिपाही जो थे उन्होंने विद्रोह किया, एंड दे वर स्ट्रिप्ड देयर यूनिफॉर्म, और वो सब एक हो गए और एकजुट होकर उन्होंने हमला बोल दिया। Oh, proud Brahmar! Few Englishmen had carried to understand the Indian customers or a people mind. कुछ Englishmen जो थे वो had cared to understand, वो समझ सकते थे कि जो क्या कस्टम्स हैं यहाँ के लोगों का, क्या दिमाग है, कितनी दूर की ये सोच सकते हैं, मतलब बिल्कुल बेवकूफ़ समझते थे। Oh, proud Brahmar soldiers! Do you know that the grease of your bullet have to bite is the made from the fat of the cows and pigs? और इसके बाद पता है जो इंग्लिश मैन थे उनको पता था कि ये जो पीपल्स हैं ये हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम इनको सिपाहियों को अपनी आर्मीज़ में ले आएंगे तो इसके लिए कुछ भी कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि धर्म से अलग करके आप उनसे कोई भी काम नहीं करा सकते हो। सो अंडरस्टैंड इंडियाज़ कस्टम, वो इंग्लिश जो मैन थे उनको पता था कि ये अपने कस्टम्स के विरुद्ध में नहीं जा सकते, एक हद तक ही आ सकते हैं। फिर ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, एक गर्वित ब्राह्मण हो तुम। डू यू नो दैट द ग्रीस, एक जो ग्रीस होती है बंदूक में, जब बंदूक चलाई जाती है तो वो किससे बनी होती है? वो एक काऊ और पिग्स की खाल से बनी होती है। तो क्या तुम सैनिकों के जैसे उनकी सेना को ज्वाइन करोगे? तो वो तो काऊ से बनी होती है, काऊ की खाल से, और काऊ तो हमारे यहाँ माता होती हैं। ये ब्राह्मण से बोले एक राजा, तो क्या तुम उनकी सेवा करोगे एक सैनिक के रूप में? और एक दूसरी तरफ थे एक मॉमडन पर्सन, तो उनसे भी यही कहा गया कि क्या तुम सुअर की चर्बी को अपने मुँह में लगाओगे, क्योंकि मॉमडन्स भी सुअर को नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम काऊ को नहीं काऊ के मांस को टच नहीं कर सकते और तुम पिग्स के मांस को टच नहीं कर सकते, तो तुम दोनों ही जो आर्मीज़ है, इंडियन आर्मी है जो ब्रिटिशर्स की आर्मी है उसको तुम लोग ज्वाइन नहीं कर सकते। सून चपातीज वर सेंड, अब क्या हुआ, राजा ने क्या किया कि चपातीज़ को हर गांव से गांव भेजा। चपातीज़ एक मैसेज था ये कि राजा की तुम लोग मदद करो और राजा तुम लोगों को खाना देंगे, अन्न देंगे। तो वहाँ के लोग तो भूखे मर रहे थे। येस ऑल माई विलेजेस मैन विल बी रेडी, तो सब एकजुट हो गए कि हाँ ठीक है हमें रोटी मिलेगी, हमें क्या है, हम तो एकजुट होकर देश के जो विद्रोही हैं उनको बाहर निकालेंगे, हम राजा के साथ हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर, और कुछ जगह लोटस फ्लावर एज अ मैसेंजर के थ्रू भेजा गया कुछ सिटीज़ में, और एमंग द इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स के बीच भी भेजा गया। डेथ टू द फॉरेन्स, कि फॉरेनर्स को मारने के लिए हम सबको एकजुट होना ज़रूरी है, तो क्या आप एग्री हैं? तो उधर सोल्जर्स ने भी उस लोटस को एक्सेप्ट किया और वो लोग भी बोले द मैशर्स गेव द हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और हम एक सच्चे देशभक्त हैं और हम अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ पर ज़रूर विद्रोह करेंगे। नाउ 8 द पॉइंट इज़ रिवोल्ट। अब 1857 आ गया था और विद्रोह छिड़ चुका था। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, अब मेरठ में सबसे पहले युद्ध हुआ। द सिपाहीज मर्चेंट टू दिल्ली, अब जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुंच गए थे। लॉन्ग लाइव अवर एम्पायर बहादुर शाह, हमारे बहादुर शाह वो भी एक हो गए थे कि हम भी एक साथ होकर, मतलब जितने भी देश के लोग थे सब एक हो गए थे, हर देश के, हर प्रांत के, हर धर्म के जो राजा थे वो एक हो गए थे। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म नहीं देख रहा था उस समय। सबका एम एक ही था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। सो द रेबेलियंस स्प्रेड वाइडर, और जो रेबेलियंस थे उन्होंने भी अपना जो पूरी सैनिक थी वो उसे फैला रखा था। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, अपनी जो ज़मीन थी बहुत सारे ज़मीन
ज़मींदारों ने खो दी थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स पॉलिटिक्स एंड दे वर सॉर, वो भी बहुत ऊब चुके थे ब्रिटिशर्स के जो जुर्म से। तो उन्होंने भी मन में ठान रखा था कि हमें भी बदला लेना है अंग्रेज़ों से। तो उन्होंने भी देखा कि जब देश के हर राजा एक दूसरे से जुट हो रहे हैं, हर धर्म एकजुट हो रहा है, तो क्यों ना हम भी अपने देश के राजा से मिल जाएं और ब्रिटिशर्स को बाहर निकालें। सब एक हो गए थे लास्ट में। नाउ द फाइट फॉर द फ्रीडम, अब स्वतंत्रता की लड़ाई छिड़ चुकी थी 1857 में। मैनी फॉर्मर्स रूल्स लाइक द बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, और जैसे फार्मर्स थे, किसानों की ज़मीन छीन ली गई थी, वैसे ही जो एक और रूलर्स थी बेगम हज़रत महल लखनऊ की, उनके ऊपर भी उनको भी बहुत डिसीव किया था फॉरनर्स एंड वाइट मैन ने। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, उनका भी राज्य छीन लिया तो वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। दे ज्वाइन द अपसर्व अगेंस्ट द फॉरनर्स, उन्होंने कहा मैं भी ज्वाइन करूँगी जो विद्रोह छिड़ रहा है फॉरनर्स के अगेंस्ट, मैं भी जाऊँगी। एंड नाउ द पॉपुलेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उसने काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था और काफ़ी एक दूसरे के साथ होकर उन्होंने जो भी एक एम था उनका उसको कंप्लीट करने की कोशिश की थी। पॉपुलर लीडर लाइक द मौलवी अहमदुल्ला ऑफ द फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने भी जो पॉपुलर लीडर्स थे, जो नेता थे, लाइक मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद में रहते थे, उन्होंने भी अपनी सेना को, अपने देश के लोगों को बताया, राइज, उठो भाइयों, उठो, जागो, द अंग्रेज इज रूइनिंग द लैंड, क्योंकि अंग्रेज़ हमारी जन्मभूमि को, हमारी कर्म भूमि को बर्बाद करने पे पड़ा है। एंड द पीपल रोज एवरीवेयर इन द बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और जो पीपल थे वो जो रोज़ था लड़ाई का, जीत का, जो कहते हैं ना कि एक कमिटमेंट था, वो रोज़ वो पूरे जगह फैल चुका था। कहाँ कहाँ? बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। तो सारे देश के, सारे शहर के लोग, सब जगह के लोग एकजुट हो गए थे। केवल उनका एक ही एम था कि उनको भारतवासियों को, फॉरनर्स को यहाँ से भगाना है। नाउ अजीमुल्ला खान टोल्ड द तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव द पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वॉर इन इंडिपेंडेंस, हमको भी इस स्वतंत्रता की लड़ाई में एकजुट होना पड़ेगा, देश के सारे राजाओं के साथ मिलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर अपना देश बचाना है तो हमें भी इस जंग में उनका सहयोग देना है। द पैट्रियट्स जो देशभक्त थे वो पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिशर्स एंड फाउट द पिच द बैटल्स ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में युद्ध छिड़ चुका था और सब एकजुट हो गए थे। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ द बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन दिस ब्रेस्ट, और इस युद्ध में 80 years मतलब 80 साल के बूढ़े कुंवर सिंह नामक एक योद्धा, एक राजा थे जो बिहार के थे, उन्होंने एक रिसीव्ड किया था बुलेट, यानी एक ऐसी बुलेट को, एक ऐसी बंदूक को कि जिससे उनकी रिस्ट जो थी वो टूट गई थी, एंड उन्होंने अपनी रिस्ट को गंवा दिया था और मदर गंगा में अपने अंगूठे को काटकर फेंक दिया था और कहा था कि मदर गंगा, मैं अपना अंगूठे की आहुति देता हूँ, आपको बलिदान देता हूँ कि मैंने इस युद्ध में लड़ा और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनको बाहर निकालने का प्रयास किया। सो इट वॉज़ अ स्टोरी एंड इट वॉज़ अ ग्लिम्पसेस ऑफ द स्टोरी। ये आपको 1 by 1 इन शॉर्ट वे में, शॉर्ट वे तो नहीं था, बहुत लॉन्ग वे था, बिकॉज इट्स टू लेंदी चैप्टर, और अब सोचिए अगर हम पूरा पढ़ने जाएंगे तो ये कितना लेंदी होगा। सो नाउ इट्स गोइंग टू एंड this chapter, and day after tomorrow in my next session I will be provide you the question answers and PDF exercises of this chapter.